السلام علیکم۔ ہمارے شاجی رضا یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ ولی اللہ کی تو شان اعلیٰ شان ہوتی ہے، ولی اللہ کی تو شان اعلیٰ شان ہوتی ہے، ولی اللہ کو ہر ایک کی پہچان ہوتی ہے، ولی اللہ کو ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں۔ ولی تو نظروں میں دونوں جہاں رکھتے ہیں، ولی تو نظروں میں دونوں جہاں رکھتے ہیں۔ سیدنا خواجہ کریم نواز علیہ رحمت و رضوان جب ہندوستان میں تشریف لا رہے تھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمیں کسی ملک میں بھیج دیجئے، کوئی ملک ہم کو عطا کر دیجئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے خواجہ کریم نواز، تمہاری پہلے ہی سے مقدر میں ہندوستان لکھ دیا گیا ہے، تم ہندوستان کی سرزمین پر چلے جاؤ، ہندوستان میں مذہب اسلام کا پرچار کرو، مذہب اسلام کی تبلیغ کرو، مذہب اسلام کا جھنڈا لہراؤ۔ تو سیدنا خواجہ کریم نواز علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ہمارے ساتھ ہندوستان تشریف لے چلیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے خواجہ معین الدین چشتی، میرے لیے حکم خدا ہوا ہے کہ تم بغداد شریف کو چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں جاؤ گے۔ تو اے خواجہ معین الدین چشتی، میں بغداد شریف کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، اے غوث پاک، تو ہم کو عراق عطا کر دیجئے، ہم عراق میں چلے جائیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی، عراق میں شہاب الدین نام کا ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچے گا تو اس کے سپرد عراق کر دیا جائے گا، اور تمہارے مقدم میں ہندوستان لکھ دیا گیا ہے، تم ہندوستان جاؤ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غوث پاک، تو آپ اپنی اولاد میں سے، آپ اپنے اولاد پاک میں سے کسی کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ آپ کی برکتیں میرے ساتھ رہیں، آپ کی برکتیں میرے ساتھ رہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام صاحبزادوں کو اکٹھا کیا، بلایا، تمام لخت جگر آپ کے حاضر ہوئے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے خواجہ معین الدین چشتی، جس فرزند کو چاہو، جس میرے بیٹے کو چاہو، میرے جس لخت جگر کو چاہو، تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو سیدنا خواجہ کریم نواز علیہ رحمت و رضوان نے آپ کے بڑے فرزند حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کو آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، تم سیدنا خواجہ کریم نواز علیہ رحمت و رضوان کے ہمراہ ان کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر چلے جاؤ تاکہ ہماری بھی ایک نشانی ہندوستان میں باقی رہے، ہماری بھی ایک نشانی ہندوستان میں باقی رہے۔ اب سیدنا خواجہ کریم نواز علیہ رحمت و رضوان ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو ہندوستان کی سرزمین پر حضرت سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامتیں ظاہر ہیں۔ وہ کون سی کرامتیں؟ بڑی مشہور کرامت حضرت سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک روز پرتھوی راج چوہان یعنی رائے پتورا خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کے خلاف اپنے ایک مندر میں گیا، پوجا کرنے کے لیے گیا، جس کو سادی دیو کہتے ہیں، اسی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے دیو، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خدا، ہندوستان کی سرزمین پر یہ دو پیش آئے ہوئے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، تو ایسا کرم کر دے کہ یہاں سے ان کو تو جلدی سے بھگا دے۔
इतनी दुआ मांग कर राह पे तौरा चला आया। उसके बाद में उसके जितने खद्दाम थे, जितने सिपाही थे, उन्होंने उसको गुस्ल दिया, नहलाया, धुलाया, अच्छी खुशबू लगाई और गुलाब जब छिड़का और अच्छे कपड़े पहनाए। पहनाने के बाद में रक्स किया, यानी ढोल और तमाशे गाने बजाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ जब से जन्नत सैफुद्दीन जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में पहुंची तो आप वहां पर गए और मालूम किया कि ऐ लोगों कैसा शोर शराबा कर रहे हो, क्यों ढोल तमाशे कर रहे हो। तो कहने लगे, खद्दाम, राजा के खद्दाम कहने लगे, क्या बताएं, ये हमारा बहुत ही अच्छा खुदा है, ये हमारी बहुत जल्दी मिन्नत पूरी कर देता है, बहुत जल्दी मुराद पूरी कर देता है। तो सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह फरमाते हैं, ऐ लोगों, कभी ये बोला भी है, कभी इसने लब्बी हिलाया, कभी इसने मुंह भी खोला है। कहा, अरे कैसी आप बात करते हो, ये तो पत्थर का बुत है, ये कभी बोल नहीं सकता, ये कभी मुंह खोल नहीं सकता। तो कहा, बताओ, जो तुम्हारा बोल नहीं सकता खुदा, तुम्हारा मुंह खोल नहीं सकता तुम्हारा खुदा, तो बताओ ये कैसे करके तुम्हारी मिन्नत पूरी करेगा। हजरत सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर उस साथीयों से कहा कि चल चल उठ, जल्दी से तू लोटे में मेरे वजू के लिए पानी ला। जब सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस बुत से कहा, सादी बुत से कहा, तो उसमें फौरन हरकत पैदा हो गई और हरकत पैदा हुई, उसने अपनी जगह से उठा, उसने फिर लोटा उठाया और पानी भर के लाया। हजरत सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में पेश कर दिया। सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जितने भी खद्दाम वहाँ पर हाजिर थे मंदिर में, सब के सब आपकी जानिब देखने लगे, अपनी पेशानियों के आपकी आगोश में झुका दी और अर्ज करने लगे सब के सब, अरे जो एक पत्थर के बुत को चला भी सकता है, पत्थर के बुत से काम करवा भी सकता है, तो ऐसे ही इंसान का हुक्म मानना चाहिए। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे हमें झुकाता है, तो उसी परवरदिगार आलम के सामने झुक जाना चाहिए। तो जितने भी खद्दाम थे, सब के सब सैयदना अब्दुल वाहिद, सब के सब हजरत अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक पर तौबा की और सब ने कलमा तैयबा पढ़कर सब के सब मुसलमान हो गए। यही गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े लगते जिगर हैं, हजरत अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये गौस पाक के सबसे बड़े बेटे हैं। 6 माह तक तकरीबन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमतुर्रहमान के हमरा अजमेर शरीफ की धरती पर रहे। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमतुर्रहमान से इजाजत लेकर अलविदा कहा और मुल्क इराक की जानिब ये चल दिए। जब मुल्क इराक की जानिब चले तो एक जंगल सवा लाख जंगल था, जो 40 कोस की दूरी पर वाक़ है, 40 कोस की दूरी पर मौजूद है। जब उसी जंगल में आप पहुंचे तो वहां पर देखा एक बहुत आलीशान मंदिर बना हुआ है। अच्छा, उस वक्त मंदिर बनाया था राजपूत थौरा ने, उसमें 2 लाख रुपया लगाए थे। वो मंदिर अपने वक्त में बेमिसाल बेमिसल था, बहुत ही हसीन जमील, बहुत खूबसूरत था। जब उसी मंदिर के करीब, जब उसी बयाबान में सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे तो आपके हाथ में जो डंडा था, आपके हाथ में जो आसा था, आपके हाथ में जो लाठी थी, उसको जमीन ने पकड़ लिया या जमीन पर आपकी वो लाठी ठहर गई, आपका आसा यानी वो डंडा जमीन को पकड़ लिया और वहां से वो डंडा नहीं हिला, वो लाठी नहीं हिली, वो आपका आसा नहीं हिला। अच्छा, बात भी ये थी, जब आप बगदाद शरीफ से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको इजाजत दी तो सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने एक डंडा अता फरमा दिया था। हुजूर गौसे पाक ने एक डंडा अता फरमाया था, उसी को असा बोलते हैं। जब वो असा गौसे पाक ने आपको अता कर दिया और कहा भी था कि ऐ अब्दुल वहाब जिलानी, जब ये डंडा, जब ये असा तुम्हारा जिस जगह पर ठहर जाए वहीं पर तुम्हारी जगह क़याम होगी। और ये हुक्म आपने फरमा दिया था कि जब तुम अजमेर शरीफ से चलोगे तो 40 कोस की दूरी पर जब तुम आओगे इराक की जानिब के लिए तो 40 कोस की दूरी पर तुम्हारा डंडा जमीन को पकड़ लेगा और जमीन को जब पकड़ ले तो वही नागौर शरीफ होगा। वही जगह का नाम
नागौर शरीफ होगा, तुम वहीं पर ठहर जाना, वहीं पर क़याम कर लेना। ऐ मेरे लगते जिगर, वहीं से फिर मज़हब इस्लाम की तबलीग करना, मज़हब इस्लाम का चर्चा करना, मज़हब इस्लाम का प्रचार करना। तो सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर शरीफ की धरती से चले तो बयाबान जंगल में पहुंचे, जहाँ पर 40 कोस की दूरी पर जब आप पहुंचे तो उसी बयाबान जंगल में एक मंदिर था, बड़ा हसीन व जमील, बड़ा खूबसूरत मंदिर, जिससे उस वक्त में राजा पितौरा ने लगभग 2 लाख रुपये उसमें लगाए थे, इसलिए वो बेमिसाल था, बड़ा हसीन व जमील था। आपने एक साया के, एक दरख्त के साया के नीचे आप ठहर गए, वहीं पर आपने अपना खेमा लगा लिया और मंदिर में कभी तशरीफ फरमा हो जाते, कभी सायादार दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो जाते, जिंदगी वहीं पर बसर करते रहे, गुज़र औक़ात करते रहे, जनाब बाला वहीं पर मज़हब इस्लाम की आप तबलीग करते रहे। लेकिन वहाँ पर एक दिन राजा की बेटी पूजा करने के लिए गई तो राजा की बेटी ने देखा कि आप मंदिर के अंदर तशरीफ फरमा है और नमाज में मशगूल है, तो उसने झुंझलाकर, जलाल में गुस्से में आकर झुंझलाकर आपको कत्ल करने की इजाजत दे दी, जबकि सबके सब आपके साथ उस राजा की बेटी के साथ लगभग 1900 लोग मौजूद थे। सबने अपनी अपनी तलवारें खींच ली और चाहा कि आपके काफिले वालों को सब कत्ल कर दिया जाए। जब वो दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो सब के सब वहीं पर ठहर गए और ऐसा मालूम होता था कि इनके पैरों में बीड़ियां डाल दी गई हैं, पैर इनके बांध दिए गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते थे। अच्छा, जबान खोल रहे थे तो जबान भी बंद थी, तो जब कुछ न बोले, आगे न बढ़े, तो सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? तो राज पितौरा की बेटी के जो खद्दाम थे, जो सिपाही थे, उन्होंने कहा कि हम खद्दाम हैं, राजा की बेटी के खद्दाम हैं, 1900 लोग हैं, आपको कत्ल करने का, आपको कत्ल करने के लिए आए थे, इसलिए कि राजा की बेटी ने आपको कत्ल करने की इजाजत दी है, इसलिए हम आपको कत्ल करने के लिए आए हैं, लेकिन अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी जबान नहीं खुल सकती। वो रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। जब इस बात की खबर राजा की बेटी को पड़ी तो राजा की बेटी ने अपना एक कद्दाम भेजा, अपना एक सिपाही भेजा और ये पैगाम भेजा, क्या है सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम आपसे माफी तलब करते हैं, आप इन सबको छोड़ दीजिए। तो सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको छोड़ दिया। जब सबको छोड़ दिया तो राजा की बेटी भी और जो 1900 खद्दाम आपको कत्ल करने के लिए राजा की बेटी के साथ आए थे, सबने आपकी आगोश में सर को झुका दिया और अर्ज किया कि ऐ हुजूर बाला, ऐ सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी।